everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is while loop in C. In my previous video, we had already discussed about loop and what is the variety of loop and each and every point on for loop. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. So guys, today's topic is while loop. As we know that what is the variety of loop in C. There are three type of loop in C. First is for loop, second one is while loop, and third one is do while loop. And we had already discussed each and every point on for loop. And now we are going to discuss about while loop, right? And start with syntax. Now here the question is, what is the syntax of while loop? Right. Here we have one keyword named is while, right? And all the keywords are in lowercase, right? And one expression. Here we have one expression and the body of while loop, and here code to be executed. Right. So this is the syntax of while loop. बहुत छोटा सा है syntax इसका, बिल्कुल याद आ जाएगा. This is the expression and this expression is conditional expression. This expression is conditional expression. Remember? Okay. So in the case of while loop, here only one expression, and that expression is what? Conditional expression, right? But in the case of for loop, there are there are three expression. Actually, there are three expression. First is what? First is initialization expression, second one is conditional expression, and last one is increment and decrement expression, right? But in the case of for loop, but in the case of while loop, here only one condition, only one expression exists. What? And this expression is conditional expression. राइट यहाँ पर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन नहीं है. दैट डजंट मीन कि आपको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, राइट? अगर आपने कोई वेरिएबल यूज किया हुआ है अपने एक्सप्रेशन में या फिर अपने व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर, तो उस वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट? अगर आपने कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन में, कंडीशनल एक्सप्रेशन में यूज किया है, तो उसको यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. क्लियर है, राइट? तो अगर इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं है, दैट डजंट मीन कि आपको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, हियर द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज लाइक i ग्रेटर देन 0, बट इससे पहले आपको इसको इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा, वरना क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा. कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा इस वेरिएबल i का टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है. जब कंपाइलर को ये पता ही नहीं चलेगा तो वो वर्क कैसे करेगा? तो आपको, अगर आपने किसी वेरिएबल का यूज किया हुआ है, तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. क्लियर है? ओके, चलो. सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप. नाउ लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल. लाइक इन माय प्रीवियस वीडियो, इन द केस ऑफ फॉर लूप, हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? प्रिंट करने का 1 to 10 इंटीजर, 1 to 10 के बीच में जितने इंटीजर आते हैं उनको प्रिंट करने का, 1 to 10 इंक्लूडिंग 10 ऑल्सो, राइट? तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं. क्लियर? एग्जांपल हैज इंक्लूड stdio.h int main, right? And we have variable I is equal to 1, right? अब हमको यहाँ पे क्या करना है? while लूप का यूज किया हमने. while I is less than equal to 10, clear? Then the start the body of while and print the value of I. Sorry. And increase the value of variable I by 1. Clear? And close the while loop
body of while loop, right, and close main body. Clear? So this is the program for printing 1 to 10 integer between 1 to 10, right? तो अब देखेंगे यहाँ पे हम वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं इस तरह लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने कंडीशन लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो मैंने लिख दिया, यानी कि जो आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे मतलब आउटपुट होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्ट में आई की वैल्यू क्या है, 1 है, क्लियर है, आई की वैल्यू क्या हो गई 1। अब क्या होगा कि कंपाइलर यहाँ गया और इसने रीड किया वाइल, वाइल लूप स्टार्ट होगा वाइल, कंडीशन क्या है आपके पास, आई इज लेस देन 10, क्या आई इज लेस देन 10 है, क्या आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, यानी कि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। यस, 1 इज द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 और नॉट, आउटपुट क्या आएगा ट्रू, दैट मीन्स यस, ट्रू आया, ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स आई क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देन जस्ट इसके बाद क्या हो गया, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई है +1 से। नाउ आई की वैल्यू +1 से इंक्रीज हो गई, तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर? अब देखो सेकेंड टाइम फिर लूप चलेगा, फिर लूप चला, इज द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन और 10, यस, तो ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या है 2 है, तो आपको प्रिंट हो जाएगा वैल्यू आई की क्या हो गई 2, फिर क्या होगी, वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई 3, देन अगेन कंडीशन चेक होगा, फिर से कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, तो 3 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इस तरह आपका कब तक चलेगा, 10। सपोज कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाले पर है हमने, इस तरह आपका प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी, 10 की केस पर भी आई की वैल्यू अभी 10 है और 10 की केस में भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा कंडीशन। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन है, तो हमने ले लिया, ठीक है। तो 10 भी आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया और ये ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया और प्रिंट हो गया। अब फिर जैसे ही प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू किससे इंक्रीज हो गई, 11 से, और अब अगर कंडीशन चेक हुआ तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आया, लूप क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और आउटपुट स्क्रीन पे आपको 1 to 10 जितने भी इंटीजर होंगे वो आपको प्रिंट होने को मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, लाइक टेबल का ही एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको यूजर से पूछना है कि उसको कौन सा टेबल का आउटपुट चाहिए, राइट, 2 का 3 का 4 का 5 का कौन सा टेबल चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, हैज इंक्लूड studio.h int main int I और एक num नाम का वेरिएबल लिया, जो कि हम यूजर से पूछेंगे कि इस num की वैल्यू क्या है, कि उसको कौन सा टेबल चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, 5 का चाहिए, ठीक है, कौन से नंबर का टेबल चाहिए उसको, ठीक। अब हमने क्या किया, printf enter the value of num, clear, okay, scanf %d and %num। सपोज कि इंटीजर ने num की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है, सपोज यूजर ने num की वैल्यू हमको क्या दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। वाइल हमको कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, हमको 2 का टेबल चाहिए, यानी कि हम कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, 10 टाइम। क्लियर है? ओके, वाइल आई इज ग्रेटर, सॉरी
लेस देन इक्वल टू 10 टाइम हमको लूप चलाना पड़ेगा। क्लियर, लेस देन होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, हमको 10 टाइम लूप चलाना पड़ेगा, 10 टाइम हमको प्रिंट करना है टेबल 1 2 into 1। टेबल कैसे हमको प्रिंट करना है, 2 पहले तो लॉजिक देखो। ठीक है, लॉजिक देखो, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7, 2 into 8, 2 into 9 and finally 2 into 10। ये जो है ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, और यही क्या है, नम है। वेरी क्या कर रहा है, आई। ठीक है, वेरी क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, हर बार चेंज होगी। इंक्रीज कितने से हो रही है, +1 से। आई की वैल्यू हर बार +1 से इंक्रीज हो रही है, +1 +1, राइट, +1, हर बार +1 से इंक्रीज हो रही है। तो वेरी क्या कर रहा है यहाँ पर, आई। ठीक है, तो हमको लूप कितनी बार चलाना है, 10 टाइम्स चलाना है। क्लियर, अब आई, हमको यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है, सेम लॉजिक यहाँ पर हमको लगाना है। ठीक, अभी इनिशियलाइज कर दिया हमने आई की वैल्यू 1 से। ठीक है, आई की वैल्यू हमने 1 दे दिया। क्लियर है, ओके, आई की वैल्यू हमने 1 दे दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि नम, हमने एक, चलो नाम ही ले लो, नम इज इक्वल टू, थर्ड वेरिएबल लेकर कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, बट मैं थर्ड वेरिएबल ले लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, टी ले लिया, टेबल टी। ठीक है, टी इज इक्वल टू नम इंटू आई। ठीक है, टी इज इक्वल टू नम इंटू आई। ये देखो, t इज इक्वल टू नम इंटू आई। क्लियर है, ये नम हो गया यानी 2 इंटू आई। आई की वैल्यू इनिशियलाइज किससे है, अभी 1 से, यानी आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। क्लियर है, अब देखो, और हमने प्रिंट कर दिया। हमने क्या करना है, प्रिंट कर देना है %d, सॉरी आई नहीं, टी क्या करना, हमको प्रिंट कर देना है। ठीक, और फिर आई की वैल्यू +1 से इंक्रीज भी तो करनी है, क्योंकि हर बार किससे इंक्रीज हो रही है, +1 से इंक्रीज हो रही है। आई की वैल्यू हमको किससे इंक्रीज करना पड़ेगा, +1 से इंक्रीज भी कर दिया। क्लियर, और ये हमने क्लोज कर दिया। व्हाइल लूप की बॉडी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और हमने सिंपली यहाँ पे रख दिया रिटर्न 0 एंड क्लोज द मेन बॉडी। क्लियर है, सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर टेबल ऑफ 2। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कैसे होगा, आउटपुट आपको कैसे मिलेगा। यूजर ने दे दिया नम की वैल्यू 2, यूजर ने नम की वैल्यू को 2 दे दिया। अब वाइल i इज लेस देन 10, इनिशियलाइज किससे, i की वैल्यू 1 से। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज है, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो अब क्या होगा, कोड जो भी होगा वाइल की लूप की बॉडी के अंदर जितने भी कोड होंगे वो क्या होंगे, सिंपली एक्सिक्यूट होना स्टार्ट कर देंगे। अब एक्सिक्यूट हुआ, t इज इक्वल टू नम इंटू आई। नम की वैल्यू 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है अभी आपके पास 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 2। अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, अभी आई की वैल्यू 1 थी, 1 से इंक्रीज होके 2 हो गई। फिर कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन हो गया ट्रू, और फिर t इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अगेन फिर चेंज हुआ 3। इस तरह से आपका कंडीशन भी ट्रू होता जाएगा और जो आउटपुट है वो आपको प्रिंट मिल जाएगा। 10 वाले पर क्या होगा, सपोज कि i की वैल्यू 10 है, लास्ट में कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 आपको मिल जाएगा। आउटपुट स्क्रीन पे 20 मिलेगा। अब जैसे ही i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, यानी 10 से क्या हो गई 11 हुई, तो कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हो गया फॉल्स, यानी ब्रेक हो जाएगा आपका व्हाइल लूप, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको फॉर लूप पर भी बताया था, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको किस पे बता दिया, व्हाइल लूप पर भी बता दिया। अगर आप यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थर्ड वेरिएबल t का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर देंगे, आप प्रिंट एफ में ही इस तरह से num इंटू आई लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, ओके। अब कुछ केसेस देख सकते हैं यहाँ पे।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाइल लूप की वर्किंग क्या है और किस तरह से वर्क करता है। जैसा कि मैंने फॉर लूप में बताया था, मैंने फॉर लूप में क्या बताया था कि वहां पे जो इनिशियलाइजेशन है वो ऑप्शनल है। सिंटेक्स में, फॉर के सिंटेक्स में जो इनिशियलाइजेशन है वो ऑप्शनल है, आप उससे पहले भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था फॉर में कि कंडीशन जो है वो भी क्या है, ऑप्शनल है। ध्यान देना, मैंने फॉर लूप में बताया था कंडीशन क्या है, ऑप्शनल है। आप अगर कंडीशन, अगर वहां पे आपने अगर फॉर लूप में कंडीशन नहीं दिया तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम तक के लिए रन होगा। बट यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, बट इन द केस ऑफ व्हाइल लूप कंडीशन मस्ट है, कंडीशन जरूरी है। अगर कंडीशन नहीं होगा, अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन नहीं है तो क्या होगा, एरर आएगा। क्लियर है, क्या होगा, एरर आएगा, आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड रन नहीं होगा। क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमने सिंटेक्स देख लो, व्हाइल हमने कोई भी कंडीशन पास नहीं किया, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया printf %d i, इस तरह से int i इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे मैंने ऐसे रिटर्न 0, और इस तरह से एक प्रोग्राम है, ठीक है। इस तरह मैंने पूरा प्रोग्राम ही बता दिया। तो इस तरह से आपके पास एक कोई प्रोग्राम है और आपने कंडीशन नहीं दिया हुआ है, व्हाइल लूप में आपने अगर कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आपको आने वाला है एरर। क्या आने वाला है, आपको एरर। बट यही केस, सिमिलर केस अगर फॉर लूप में होता तो आपको वहां पे एरर नहीं मिलता, इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका लूप एग्जीक्यूट होता चला जाता, बट आपको एरर नहीं मिलता। बट इन द केस ऑफ व्हाइल लूप आपको एरर मिलेगा अगर आपने कोई भी कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज नहीं किया है तो। क्लियर है, एक पॉइंट क्लियर हो गई। चलो दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कब आपका लूप, व्हाइल लूप आपको इनफाइनाइट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इंट i इज इक्वल टू 1, क्लियर, व्हाइल 1 printf %d i प्लस प्लस। इस तरह से अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है, दैट मीन्स कि जो कंडीशन है, कंडीशन के पास क्या है, 1 दैट मीन्स ऑलवेज ट्रू, दैट मीन्स ऑलवेज ट्रू। अगर यहाँ पे कोई इंटीजर है, अगर यहाँ पे कोई इंटीजर है रादर देन 0, अगर यहाँ पे कोई भी इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिवाय 0 के, 0 छोड़ के अगर कोई भी इंटीजर यहाँ पर है तो आपका ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए रन होता चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए रन होता चला जाएगा। तो ये किसका है, इनफाइनाइट व्हाइल लूप। क्लियर, इनफाइनाइट व्हाइल लूप का कंडीशन है। तो अगर कंडीशन ट्रू है इस तरह से, ये इसका मतलब क्या है, ऑलवेज ट्रू, 1 दैट मीन्स ऑलवेज ट्रू। तो ये हमेशा ही ट्रू रहेगी, हर बार कंडीशन क्या आपको आउटपुट देगा, ट्रू 1। क्लियर है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट व्हाइल लूप का ये केस हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखो, जैसे कि मैंने इंटीजर बोला, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से केस है, int x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 8 एंड y, हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रख दिया इस तरह से x प्लस वाई माइनस 1 एंड फिर printf %d x इंटू वाई, ले लो x इंटू वाई, और x की वैल्यू हमने किससे कर दी,
+1 से इंक्रीज कर दिया और y की वैल्यू हमने भी +1 से इंक्रीज कर दी, दोनों की वैल्यू +1 से हमने इंक्रीज कर दिया। क्लियर? और हमने ये क्लोज कर दिया, देन रिटर्न 0। तो अब बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर भी इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका लूप चलता जाएगा। क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम के लिए लूप चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही एक्सप्रेशन सॉल्व करो 10 + 8 - 1 18 - 1 17, और मैंने बोला कि अगर कोई भी इंटीजर है सिवाय 0 को छोड़ के, तो क्या होगा? आउटपुट आपको क्या मिलेगा? ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। तो ये जो लूप होगा वो इनफाइनाइट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर है? सो ये दो केसेस मैंने इनफाइनाइट केस के बता दिया, वर्किंग बता दिया कि व्हाइल लूप की वर्किंग किस तरह से होती है, सिंटेक्स बता दिया और विद एग्जांपल भी दे दिया मैंने व्हाइल लूप का यूज करके। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से व्हाइल लूप क्या है ये समझ में आ गया होगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से इसकी वर्किंग है। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।